नानक जी फुलवाड़ी विच सारी संगत दा जी आया नूं जी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤ, ਧੁਨੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਬਣਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਰੈਡੀ ਰੈਕਨਰ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੈਕਨਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਲੀ ਫਰੋਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਂਡ US ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈਂਡ ਇਟ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਰਹਾਉ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਸਾ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਟਸ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਦੈਟ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਐਨਲਾਈਟਨ ਅਸ ਔਨ ਰਹਾਉ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਾਟ ਨਾਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਔਰ ਰਹਾਉ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਰਹਾਉ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਹਾਉ ਸੰਗਿਆ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਥਿਤ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਫਾਰ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚ ਰਹਾਉ, ਫਿਰ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਵਰ, ਪਾਠ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਟੇਕ, ਸਥਾਈ, ਉਹ ਪਦ ਜੋ ਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੰਤਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਤ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਈ ਲਈ 2 ਤੁਕਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਚਾਹੇ ਵਰਤੇ
जैसे सोरठ महला पंजवा दी अष्टपदी, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, विच दो रहाव हन प्यारे, इन बिद मिलन न जाए, मैं किए कर्म अनेका, अते तेरो सेवक एह रंग माता। सो कान सिंह नाभा जी कहते हैं कि इन्होंने दोनों विचों रहाव विचों कोई भी तुक चुनी जा सकती है स्थाई वास्ते, बाकी का शब्द अंतरा हो जाएगा। 1065 नोट इत्थे दिता है उन्होंने। 1065 का नोट कहते हैं कि संप्रदाय ज्ञानी आखदे हन कि सारे शब्द का सिद्धांत अते केंद्री ख्याल रहाव दे तुक विच हुंदा है, विच वी ऑल साडा कॉन्सैप्ट यही है। हुण इत्थे भाई साहब जी ने कहा सी रहाव शब्द रामकली की पहली वार, रामकली च 2 वार है, रामकली की पहली वार दी पहली पौड़ी दे अंत विच रहाव शब्द आउंदा है, विच आई हैड नैवर कॉट। मैं तुहाडे नाल पहले प्रेजेंटेशन शुरू होने तो पहले गल कर रहा सी कि ये चीज़ मैं नवी देखी। मैं यही सोचता सी कि वारां विच रहाव है नहीं, पर रामकली की वार पहली वार जिहड़ी महला तीजा दी है, उसकी जिहड़ी पहली पौड़ी है, सच्चा तख्त रचाया बैठन को जाए, सब किस आपे आप है गुर शब्द सुनाई, आपे कुदरत साजियन कर महल सराई, चंद सूरज दो चानने पूरी बनत बनाई, आपे वेखै सुने आप गुर शब्द ध्याई। उस तो बाद एका आ जाता है, पहली पौड़ी खत्म हो गई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्चे नाई, ये रहाव दी तुक है। फिर मैं पूरियां वारां चेक कीतियां ते आसा की वार दी जिहड़ी वार है उस विच भी एक रहाव दी तुक आंदी है, वो 12 नंबर छक्के दे विच आंदी है जिथे महले पहले का शब्द है। तो खाली यही 2 वारां हैगियां जिन्हां विच रहाव दी तुक आंदी है, होर किसी वार विच रहाव दी तुक नहीं हैगी। हुण भाई वीर सिंह जी सानू की दसदे हैं रहाव दी तुक बारे। भाई साहब कहते हैं राग विद्या विच स्थाई जां टेक, गवीए जिस हिस्से गाउण दे ते बार बार आके टिकण, वो स्थाई या टेक है या रहाव है। जैसा कि रह रह कहिए एक स्वर स्थाई ताको नाम, ये एग्जाम्पल दी है, ये तो गुरु ग्रंथ साहब की नहीं हैगी। भाई साहब ने समझाया कि रह रह कहिए एक स्वर स्थाई ताको नाम, जिहड़े स्वर नूं वार वार गाया जाए उहदा नाम स्थाई है। यह सिरलेख शब्दों विच बहुत लिखिया है अते रहाव दे पहले दा एकड़ा भी लिखिया है, दैट मीन्स नंबर 1। भाव एक रहाव जां रहाव पहला है, क्योंकि इक्के शब्द विच रहाव दूजा रहाव तीजा करके भी आया है। एक दी सूचना दूजे तीजे तो अडरी करन लई रहाव दूजा या रहाव तीजा, इनू असीं विस्तार विच वेखना है। एट दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट वी विल टॉक अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी इन डिटेल। अर्थ करन विच रहाव दा भाव यह भी है कि शब्द दे अर्थ दा क्रम रहाव दी तुक तो चुकियां व्यवस्था ठीक लगती जाती है। सो तीसरा अर्थ करते हैं रहो टिको यथा पाई रे गुरमत साच रहाव। सो ये अर्थ भाई साहब जी ने किए हैं। फिर दमदमी टकसाल की जथा पिंडरा मेहता की एक किताब है मूल मंत्र। मूल मंत्र की किताब विच पन्ना 20 ते वो कहते हैं जिवें रहाव तो उपरलियां शब्द दियां तुकां मूल रूप विच हुंदियां हन अते हेठलियां तुकां शब्द के आशे नूं खोल के विस्तार विच दर्शाउंदियां हन। वो है मीनिंग रहाव दा सिग्निफिकेंस। इस ते भी असीं डिटेल च विचार करनी है। इत्थे कहा है कि जिवें रहाव तो उपरलियां शब्द दियां तुकां मूल रूप विच हुंदियां हन अते हेठलियां तुकां शब्द के आशे नूं खोल के विस्तार विच दसदियां हन, दर्शाउंदियां हन होना चाहिए सी, पर उत्थे दर्शाउंदी ही लिखिया। सो इस वास्ते मैं वही टाइप किया जो उत्थे लिखिया। हुण असीं देखदे हां एग्जाम्पल्स। आसा महला पंजवां दुप दे पन्ना 404 तो शुरू होंदे हैं। इहदे विच 6 शब्द है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ 4, 5 ਤੇ 6 ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਉਤਮ, ਨੀਕੀ ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਮ, ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫੀਕੀ ਰੇ। ਨੀਕੀ ਸੋਹਣੀ, ਜੀ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਮ, ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫੀਕੀ ਰੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹਨ, ਹਰ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਤਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗੁਣ ਧੁਨ ਮਨ, ਜਨ ਖਟ ਬੇਤੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਕਿਸ ਲਾਈ ਕੀ ਰੇ। ਬਿਖਾਰੀ ਨਿਰਾਰੀ ਅਪਾਰੀ ਸਹਿਜਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪੀਕੀ ਰੇ। ਪੀਕੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਪੀਕੀ ਰੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਯੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਜੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਕ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ਦੁੱਪ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ 2, ਦੁਪਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ 2 ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈ 3, ਤਿਪਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਹੀ ਪਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਦਾ ਇੱਕ ਤੁਕਾ, ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੁਕੇ हैं, एक और 2 शब्द दो पदे हैं, एक तीसरा तिपदा है। नंबर तुसीं वेख सकते हो 133, 134 और 135 और इत्थे भी 4, 5 ते 6। सो इत्थे थोड़ा नंबरां दी रिफ्रैशिंग भी हो जाती है, पर रहाव दी तुक पहली होने करके इत्थे रहाव दा सिग्निफिकेंस थोड़ा बदल जाता है। आओ असीं अगे चल के होर थोड़ी डिटेल वेखीए। हुण ये शब्द जे असीं वेखीए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 4 ਤੁਕਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਧੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਜਾਗੈ ਹਾਂ ਨਿਸਪਰਸ ਹੋਵਾਂ। ਇਹੋ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਉਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹਾਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਏਕ ਨਾ ਭਰੀਆ ਗੁਣ ਕਰ ਧੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਜਾਗੈ ਹਾਂ ਨਿਸਪਰਸ ਹੋਵਾਂ। ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਸਹ ਜਾਗੈ ਹਾਂ ਨਿਸਪਰਸ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾਂ, ਆਗੇ ਸਹਿ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੀ ਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਾਉ ਲਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੇ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਚਾਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਿਸ ਨਾ ਬੁਝਾਨੀ, ਗਿਆ ਸੋ ਜੋਬਨ ਧਨ ਪਛਤਾਨੀ, ਅਜੇ ਸੋ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ।
ਹਉਮੈ ਖੋਏ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ, ਤਉ ਕਾਮਣ ਸੇਜੇ ਰਵੈ ਪਤਾਰ। ਤੋ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 3 ਪਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹਾਂ ਨਿਸਪਰਸ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਹੁ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੇ ਮਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਸੇਜੇ ਆਵਾਂ, ਆਗੇ ਸਹਿ ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਭਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰੇ ਮਾਈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਸੋ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹੋ ਨਿਰਾਸੀ। ਅਜੇ ਸੋ ਜਾਗੋ ਆਸ ਪਿਆਸੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉਮੈ ਖੋਏ ਕਰੇ ਸਿਗਾਰ, ਤੋ ਕਾਮਣ ਸੇਜੇ ਰਵੈ ਪਤਾਰ। ਤਉ ਨਾਨਕ ਕੰਤੈ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਛੋੜ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਸਮਾਵੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲ ਰਹਾਉਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਡਲ ਹੈ, ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਾਸਟ ਦੀ ਰਹਾਉ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 6 ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ ਜਿਉ। ਹਰ ਜੀਅ ਸਭੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਰਮਈਆ ਸੋਏ। ਸੋ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਜੋ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚਿਤ ਲਾਇਂਦੇ, ਸੇ ਛੋੜ ਚਲੇ ਦੁਖ ਰੋਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਅੰਤ ਸਖਾਈ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਰਹਾਉ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਈਏ, ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਡਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰਲੇ ਪਦੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਈਐ, ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਡਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਦੇ ਦਾ ਸਰਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿੜ ਭਾਈਆ, ਹਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾਉ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ, ਜਿਉ ਵੇਸਵਾ ਪੂਤ ਨਿਨਾਉ। ਪਿਤਾ ਜਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਉ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਅਹਨਸ ਲਾਗਾ ਭਾਉ। ਜਨ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਓ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਲਾਗਾ ਚਾਓ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਦੇ ਦਾ ਸਰਾਂਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕੱਢਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਿਨ ਭਾਈਆ, ਹਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾਉ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਲਾਗਾ ਚਾਓ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਬਿਨ ਭਾਈਆ, हे ਭਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾਉ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਰਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਦੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ क्योंकि ਸਮਾਂ बहुत ज़्यादा लग जाएगा, पर लास्ट की तुक की फिर एक विचार कर लें। जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। हुण देखो तुसीं असीं ईड़ी नूं सिहारी दी और ला दी गल कीती सी, इत्थे ईड़ी नहीं है पर मिले है, आए मिले, आके मिले एक्शन हो गया। आना वाज एक्टिविटी, मिले वाज द रिजल्टेंट। आए मिले गुर पास, सेवक भाए बन जा रहा मित्रा, गुर हर हर नाम प्रगास, धन धन वणज व्यापारिया, जिन वखर लदेड़ा हर परास, गुर मुखा दर मुख उजले, से आए मिले, अगेन आए मिले हर पास, जन नानक गुर तिन पाया, जिन आप तुठा गुणतास, हर ध्यावो सास गिरास। मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा, हर नाम जिना रहरास। रहरास का मतलब होंदा बेनती, प्रार्थना। सो जिन्हां गुरमुखां दी प्रार्थना ही हरि दा नाम है, उन्हां दे मन विच प्रीत लग गई परमात्मा दी। जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास, हर ध्यावो सास गिरास। सो इत्थे अगेन महाराज ने निर्णय दे दिता, इत्थे रिजल्टेंट दे दिता, इत्थे डिक्लेरेशन दे दी कि किस तरह काम बनना है। सो रहाव दे मल्टीपल रहाव दियां तुकां विच मेरे विचार नाल अखीरली रहाव दी जिहड़ी तुक हुंदी है वो पूरे शब्द दा रिजल्टेंट दे दिंदी है। इत्थे मल्टीपल रहाव्स हैं, हर एक पद नाल रहाव कनैक्टेड है। सो दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू। हुण अगे चलिए रहाव दूजा नूं वेखदे हां। असीं रहाव दूजा विच की हैगा? रहाव दूजा विच ऐसा तै जग भरम लाया, कैसे बूझै जब मोहया है माया। एक क्वेश्चन है, ऐसा तै जग भरम लाया कैसे बूझै जब मोहया है माया। ये पहली रहाव है इस शब्द विच, पेज 91 92 ते। फिर महाराज कहते इत संगत ना ही मरना, हुक्म पछाण तां खसमे मिलना। हुण इत्थे मरना किहड़े प्रीटैक्सट विच लिखिआ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ थोड़ा जिहा वेट करते हैं क्योंकि ਇਹ दो शब्द मैं पूरे अगलियां स्लाइडां ते ले आया ताकि इन्हां दो शब्दां दा ਅਸੀਂ पूरी तरह विस्तार विच वेख सकीए। So let us hang on to this for a minute and we will discuss these two शब्द in detail। उत्थे सानू क्लीयर हो जाएगा कि क्वेश्चन की है ते आंसर की है। नेक्स्ट विच महाराज कहते किन बिद कुशल होत मेरे भाई। कुशल का मतलब है भला। किन बिद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाइए हर राम सहाय। क्यों नहीं, क्यों पाइए, किस तरह पाइए, किहड़े तरीके नाल पाइए हर राम सहाय। इत्थे महाराज कहंदे इन बिद कुशल होत मेरे भाई, ये तरीका कर जिहड़ा ऐस तुक दे और ऐस तुक दे विचकार लिखिया है। जिहड़ी व्याउत दसी महाराज ने कहंदे इन बिद कुशल होत मेरे भाई, यो पाइए हर राम सहाय। सो इत्थे अगेन निर्णय दे दिता महाराज ने। हुण इस शब्द विच एक असीं खास चीज़ देखनी है कि इस शब्द विच शब्द का सीक्वेंस नंबर नहीं दिता, वो असीं डिस्कस करांगे अगेन इन डिटेल। सो सुख मोको संत बतावो, तृष्णा बूझै मन तृप्तावो, जाके हर धन सोई सुहेला, प्रभ किरपा ते साध संग मेला। सो इत्थे अगेन क्वेश्चन सी, महाराज कहंदे सो सुख मोको संत बतावो, तृष्णा बूझै मन तृप्तावो। फिर इत्थे आंसर दे दिता, जाके हर धन सोई सुहेला, प्रभ किरपा ते साध संग मेला। रहाव दूजा अगेन, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त ओह अपनी लहै। सो जागै जिस प्रभ किरपाल, यह पूंजी साबत धनवाल। निर्णय दे दिता। कौन गुण, केड़े गुण, जो तुझ लै गावो, केवल बोल कमन बोल पार ब्रह्म रिझावो। सो अगेन क्वेश्चन है इत्थे। महाराज कहते तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिनकी मान ले सुखदाता। रहाव दूजा आ गया। तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना, कोट जन्म भरमै बो चूना। फिर पार ब्रह्म तेरी सरनाए, बंधन काट तेरा हर नाए।
ਇੱਥੇ ਅਗੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਤੇਰਾ ਹਰ ਨਾਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਰਣਾ ਆ ਗਿਆ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਤਾਈ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਨ ਬਿਦ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿਨ ਬਿਦ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਨ ਔਰ ਇਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਨ, ਉਨ, ਤਿੰਨ, ਜਿਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਨ ਬਿਦ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ RAM ਰਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਗੁਸਾਈ। ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਭਇਆ ਭ੍ਰਮ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨਾਠਾ, ਮਿਲ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ। ਸੋ ਨਿਰਣੇ ਆ ਗਿਆ ਰਹਾਉ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਕੀ ਨਾਇਕ ਕਰਵਾਸ ਨ ਦੇਵੇ, ਜਤਨ ਕਰੋ ਉਰਝਾਏ ਪਰੇਵੇ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਆਮਰ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ। ਨਿਰਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਇਕ ਹਮਾਰੀ, ਇਹ ਆਮਰ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਏ ਦਰਬਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਬਣਾਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਵਿਚਖਣ, ਅਤ ਗਰਬੇ ਮੋਹ ਫਾਕੀ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਰੂਪ ਸਭ ਸੁਖ ਬਨੇ ਸੁਹਾਗਨ, ਸਭ ਰੂਪ ਸਭ ਸੁਖ ਬਨੇ ਸੁਹਾਗਨ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਖਣ ਤੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਤੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਤੁਰ, ਸਿਆਣਪ, ਕਲੈਵਰ। ਉਹ ਕਲੈਵਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲੈਵਰਨੈਸ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਵਿਚਖਣ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਤੁਰ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਕਵਨ ਬਨੀ ਰੀ ਤੇਰੀ ਲਾਲੀ, ਕਵਨ ਰੰਗ ਤੋਂ ਭਈ ਗੁਲਾਲੀ। ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੁਨ ਰੀ ਸਖੀ ਇਹ ਹਮਰੀ ਕਾਲ, ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਿੰਗਾਰ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਨਿਰਣय ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਾਉ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਐ। ਨਿਰਣय ਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਪੈਰਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਰਾਧੇ, ਕਾਚ ਕੋਠਰੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਸਤਾ, ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਖੇ ਕੀ ਬਿਆਦੇ। ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਰਾਧੇ, ਕਾਚ ਕੋਠਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੂੰ ਬਸਤਾ, ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਖੇ ਕੀ ਬਿਆਦੇ। ਬਿਖੇ ਦੀ ਵਿਆਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਕਾਚ ਕੋਠਰੀ ਕੱਚੀ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਪਿਓ ਭਾਈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਪਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਥੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਿਰਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਜਪਿਓ ਭਾਈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ, ਪਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਥੇ। ਸੋ ਨਿਰਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ, ਏਕ ਕੋਸਰੋ ਸਿਧ ਕਰਤ ਲਾਲ, ਤਬ ਚਤੁਰ ਪਾਤਰੋ ਆਇਓ। ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਟ ਆਫ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸਰੋ ਮਾਇਓ, ਸਭ ਰਹਿਓ ਅੰਦੇਸਰੋ ਮਾਹਿਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਓ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਨਿਧਰਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਨਿਰਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਰਹਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਦੇਸਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਭ ਰਹਿਓ ਅੰਦੇਸਰੋ ਮਾਹਿਓ, ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਓ, ਸਰਬ ਗੁਣਾ ਨਿਧਰਾਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਉ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਏਕਾ 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 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਾਉ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 11 ਹੈ, ਟੋਟਲ ਸ਼ਬਦ 61 ਹੈ। ਅਗੇਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪ੍ਰਯੋ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ।
अगेन याचना है। अगे लास्ट में आ गया तेरो सेवक एह रंग माता, प्यो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता। जदों यह स्टेज तेरी हो गई ते फिर आनंद ही आनंद है। वो यह रहा दूजा अगेन निर्णय आ गया कि तेरो सेवक एह रंग माता, प्यो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता। हुण इत्थे तुसीं वेखो 1 और 3 है, इत्थे एक ड्यूअल परपस नंबर सर्व करता है, जिहड़ा कि असीं नंबरिंग प्रोसीजर च वेख्या सी कि कई जगह ते एक डबल फंक्शन करता है। इत्थे सीरियल नंबर 1 है क्योंकि शब्द पहला है और रहाव दूजे का भी एक कॉमन आ गया। शब्द का सीक्वेंस नंबर जिहड़ा सीक्वेंस ऑफ शब्द है वो 3 है, पर इस लड़ी का शब्द पहला है। आओ अगे चलिए। जप नाथ दिन रैणाई, तेरी खिंथा दो दिहाई। फिर मारा कहते इं जपिया नाथ दिन रैणाई, हुण पाया गुरु गोसाई। निर्णय आ गया। रे नर काए पर ग्रह जाए, कुचल कठोर काम गर्दभ, तुम नहीं सुनियो धर्म राय। अगेन क्वेश्चन है, रे नर काए पर ग्रह जाए, हे मना तू क्यों पराए घर जा रहे हैं। कुचल कठोर काम गर्दभ, गर्दभ का मीनिंग होता गधा। तुम नहीं सुनियो धर्म राय, तेनू धर्म राय का सुनिया नहीं, तू पता नहीं तेनू जब जम आए केस गह पटके। धर्म राय ने तेरा हिसाब लेना है, नहीं सुनियो धर्म राय, धर्म राय बारे सुनिया नहीं, तू ख्याल नहीं करता, तेनू विचार नहीं कि माड़े काम कर रहे हैं अंत विच की होएगा। फिर नर महाराज कहते रे नर इन बिद पार पराए, ये तरीका तो अख्तियार करेगा ना, इन बिद पार पराए केड़ा त्याए हर जियो, होए मृतक त्याग दूजा भाव। हुण मृतक का अर्थ है कि मन नू मारना है, मन नू मोड़ना, शरीर नू मारना नहीं। शरीर मर गया तो खत्म हो गया ना काम। तो त्याए हर जियो होए मृतक, प्रभु का नाम लैके शब्द नू आराध के मन नू मार, त्याग दूजा भाव, दूजे भाव नू त्याग दे। हुण इत्थे भी ये शब्द हैगा 1001 अंक ते और 1002 अंक ते, जिहड़ा भैन जी ने एक बारी क्वेश्चन कीता सी, इहनूं भी असीं डिटेल च वेखना है लास्ट विच। और इत्थे जिहड़ा शब्द अंक 2 है, नंबर 2 है, ये ड्यूअल फंक्शन सर्व कर रहा है। ये शब्द है पंचपदा। पंचपदा का जिहड़ा पंजा सी, पंज इस तो उपरली तुक विच आया सी। विल लुक एट दैट इन डिटेल आल्सो, प्लीज बेयर विद मी। अगे है जी की कह पे बात कहां। अगेन क्वेश्चन है, आप मुक्त मोको प्रभ मेले ऐसो कहा लहा। रहाव पहले आ गई, मेरा अंतर्यामी हर राया, सब कुछ जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बकपाया। निर्णय आ गया। रहाव दूजा विच, इत संजम प्रभ कि नहीं ना पाया, भगवती मुद्रा मन मोहया माया। इत्थे डिक्लेरेशन है कि भी इस तरीके नाल तैनू परमात्मा मिलना नहीं। फिर एंड विच की महाराज कहते जो होवे भाग ता दर्शन पाइए, आप तरह सब कुटुंब तराइए। और केड़ा तरीका है इन्हां दोनों तुकां विच है, ये रहाव दूजा आ गया। सो असीं वेख्या इन माई ओपीनियन, जो मैं समझ लगी, जो मैं समझ सकिया, वो मैनू ये समझ लग्या कि जेड़े जेड़े शब्दां विच रहाव दूजा आंदा है, रहाव पहला तकरीबन क्वेश्चन है और रहाव दूजा उदा उत्तर है, या रहाव दूजा निर्णय है और रहाव पहले रहाव विच थोड़ी अनसर्टेनिटी करके जिहड़ी सिचुएशन होएगी, जिहड़ी सिचुएशन बनती है वो दिखाई है। पर रहाव दूजे विच कंप्लीट निर्णय दे के, क्लैरिफिकेशन दे के महाराज ने क्लियर करता भी इस तरीके नाल काम होएगा। टोटल 25 रहाव दूजा गुरु ग्रंथ साहब च मिलते हैं और वो 25 के 25 असीं उपर वेख ले हैं किहड़े हैगे हैं। आओ अगे चलिए। हुण नॉर्मली असीं की वेखदे हां कि रहाव दी तुक दी बनतर तकरीबन यू सी, रहाव दी तुक दी बनतर ऐसी है कि रहाव दी तुक दा पहला जिहड़ा हिस्सा हुंदा है दो डंडियां विच, वो छोटा हुंदा है और दूसरा हिस्सा रहाव दी तुक दा जिहड़ा वो वड्डा हुंदा है।
पर कई शब्द ऐसे भी हैं जिन्हां विच वो सीक्वेंस उल्टा है। ए देखो जिवें मन बैराग बया दर्शन देखने का चाहो, लंबी तुक है, धन सो तेरा थान छोटी तुक है। सो इस तरह की भी सिचुएशन तुहानू वेखण च मिलेगी और उन्होंने असीं थोड़ा विचार नाल देखना पेगा कि महाराज की कह रहे हैं, किस तरह का मैसेज सानू मिल रहा है। ये शब्द 50 पेज ते है। तकरीबन रहाव दियां तुकां सारे शब्दों विच वेखण नूं मिलदियां, रचनावां विच नहीं है, पर अदरवाइज चौपदे, पंचपदे, अष्टपदे, दुपदे इस तरह के जिहड़े शब्द हैं उन्हां विच मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रहाव दी तुक वेखण नूं मिलती है। पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन्हां दे विच रहाव दी तुक दर्ज नहीं है। राग गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, 172 तो 175 अंक तक ये शब्द चलते हैं। वडहंस महला पंजवां घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे अंतर लोचा मिलन की प्यारे ह्यों हों क्यों पाई गुरपूरे, किहड़े तरीके नाल क्यों पाई गुरपूरे, 564 अंक ते इहदे विच भी रहाव दी तुक नहीं है। इत्थे मैं एस्ट्रिक लाया सी। एस्ट्रिक दा मतलब मैं कहना सी तुहानू विचार करनी सी, तुहाडे नाल शेयर करनी सी कि क्रम 65 तो लैके 70 तक इस लड़ी विच राग गौड़ी माज महला चौथा विच 6 चौपदे हैं इक्को लड़ी विच, और 6 दे 6 शब्दां विच रहाव दी तुक नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। ये जिहड़ा शब्द है ये असीं अगे जाके वेखना है, पर राग गौड़ी माज महला चौथा जे 6 शब्द इक्को लड़ी विच हैं और 6 दे 6 शब्दां विच रहाव दी तुक नहीं है। नाम सुशोभित बाणियां विच जिहड़ी मैं गल हुणे पहले कीती सी थोड़ी देर पहले, रहाव दी तुक नहीं है। जिवें कि घोड़ियां, श्री राग महला पहले, पहरे घर पहला, माज महला पंजवां, दिन रैण, अगेन 12वां माज महला पंजवां, इस तरह दियां काफ़ी बाणियां हैं जिन्हां विच रचनावां हैं जिन्हां विच रहाव दी तुक नहीं है। छंतां विच रहाव दी तुक नहीं आती, बनतर ऐसी है छंतां दी रहाव दी तुक नहीं आती। पर गौड़ी सुखमनी महला पंजवां, इहदा शीर्षक सुखमनी साहब का असीं दिता होया ना, अदरवाइज गौड़ी दी किस्म है सुखमनी, महला पंजवां दी रचना है। उहदे विच तुहानू सारिआं नू पता, पाठ करदे हो सुखमनी साहब दा तुसीं रोज, रहाव दी तुक पहली अष्टपदी विच ही है, उस तो बाद किते रहाव दी तुक नहीं है। रामकली महला पहला दखणी ओंकार बाणी का नाम है, उहदे विच रहाव दी तुक आंदी है, एक रहाव दी तुक बाणी विच है। रामकली महला पहला सिद्ध गोष्ठ, उहदे विच भी एक रहाव दी तुक है, और तकरीबन बाणियां विच रहाव दी तुक सानू नहीं मिलती। हुण असीं विचार करना है एक शब्द का, जिहड़ा मैं तुहानू कहा सी कि मैं पूरा शब्द लिखिआ पेज 91 92 ते, पहले 2 शब्द मैं तुहानू गल कीती सी भी मैं लिखे हैं। हुण यह शब्द हैगा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग कबीर जीओ का। यह शब्द विच दिता है कि एक सुआन कह कर गावना। असीं इहदे भी विचार कर लेने हैं। ये विचार असीं जदों वारां दियां धुनियां दी कर रहे सी उदों ये सब्जैक्ट आया सी, इहदे विचार असीं हुणे कर लांगे। इस पर्टिकुलर एक सुआन कह कर गावना का की मतलब है। हुण जे असीं शब्द नूं वेखीए, महाराज कहंदे जननी जानत सुत बदा होत है, इतना को न जाने जे दिन दिन अवध घटत है, मोर मोर कर अधिक लाड़ धर, पेखत ही जमराव हसै, ऐसा तैं जग भरम भुलाया, कैसे बूझे जब मोहया है माया। रहाव, पहली रहाव आ गई, क्वेश्चन है, ऐसा तैं जग भरम भुलाया, कैसे बूझे जब मोहया है माया। कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, इत संगत नेह चो मरना। केड़ी संगत? बिख्या रसां दी। कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, इत संगत नेह चो मरना। नेह चो का मतलब है डेफिनेटली, निश्चय, पॉजिटिवली। रमैया जप हो प्राणी, अनंत जीवत जीवन बाणी, यह बिद भव सागर तरना। अनंत का मतलब होंदा है जो झुकिया नहीं, या अनंत या बेअंत। सो रमैया जप हो प्राणी, अनंत जीवन पाणी,
इन बिद भव सागर तरना, जां तिस भावै तां लागे भाव, भरम भुलावा विच हो जाए। उपजै सहज ज्ञान मत जागै, गुर प्रसाद अंतर लिव लागै। इत संगत नहीं मरना ही मरना। हुण देखो की कहंदे आ कबीर साहब, की कह रहे हैं? उपजे सहज ज्ञान मत जागै, तेरे अंदर सहज उपजे किवें? रमैया जपो प्राणी, अनंत जीवन बाणी। यही जीवन दी अनंत बाणी है, जिसका कोई अंत नहीं। यही जीवन का तरीका है। इन विद भव सागर तरना, इसे तरीके नाल तू भव सागर तो तरेगा। इत संगत ना ही मरना, ये तू संगत करेगा। केड़ी संगत? शब्द दी। कह कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम तलेगा राख। राम जप इत संगत ना ही मरना, हुक्म पछाण ता खसमे मिलना। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। रहाव दूजा आ गया सी। रहाव दूजा विच कबीर साहब ने निर्णय दिता। हुण तुसीं एक गल वेखो कि रहाव दूजा कबीर साहब के टाइम तो चलता आ रहा। रहाव दूजा इज नॉट कंफाइंड ओनली टू आवर गुरुस। साडे गुरु साहिबाना ने रहाव दूजा की वरतों नहीं की खाली। कबीर साहब का शब्द, कबीर साहब के लिखिया होया एक सवान कै घर गावना, कबीर साहब की बाणी शायद गुरु नानक साहब जी ने, गुरु नानक देव जी ने यह शब्द कबीर साहब को इकट्ठा किया होए या पंचम पातशाह ने मंगाया होए, किवें भी होया यह शब्द। पर लगता है कि यह शब्द गुरु नानक देव जी ने कबीर साहब को लिया। कि उसकी मैं विचार हुणे करदा तुहाडे नाल, क्यों ऐसा प्रतीत होंदा है। सो कबीर साहब के समय तो ही रहाव दूजा की प्रथा चलती पई है। इट्स नॉट समथिंग वेरी यूनीक और इन्वेंटेड बाय गुरु साहिबान ओनली। इत्थे रहाव दूजा वरतों है कबीर साहब के शब्द विच। हुण असीं आने आ एक सुआन कै घर गावना, इहदा की मतलब है? एक सुआन कै घर गावना की हिदायत डेफिनेटली लगता पंचम पातशाह ने दी है, क्योंकि श्री राग महला पहला घर चौथा गुरु नानक देव जी का शब्द है, जिहड़ा शब्द है एक सुआन दोए सुआनी नाल। इस शब्द की और कबीर साहब के शब्द की जिहड़ी एसेंस है, जिहड़ा उहदा सब्जेक्ट है, वो कॉमन है। कबीर जी के शब्द नाल मेल खांदा शब्द गुरु नानक देव जी का है। कबीर जी के शब्द नूं भी घर चौथे विच गाउण की हिदायत है, क्योंकि एक सुआन दोए सुआनी नाल, एक सुआन कै घर गावना, ये शब्द दोनों एक दूजे नाल मिलते हैं। इस वास्ते इवें जापदा है कि पंचम पातशाह ने यह हिदायत दी है, शायद पहले पातशाह ने यह ना लिखिया होए। सो इट्स ए परसैप्शन, ये तो खाली विचार है कि कित्थों की आया। पर मेन चीज की है कि एक सुआन कै घर गावना का अर्थ की है? वो अर्थ ये है कि इस शब्द नूं घर चौथे विच गावना है, क्योंकि इस दे नाल दा मिलदा शब्द जो है वो एक सुआन दोए सुआनी नाल, वो गुरु नानक देव जी का है। दोनों का सबजैक्ट कॉमन है, इस वास्ते दोनों शब्दों नूं इको घर विच गावना है। हुण मैं जो तुहानूं कह रहा सी कि भी लगता है कि शब्द पहले पातशाह ने कबीर साहब कोलों लिया होए, क्योंकि पहले पातशाह के शब्द का सबजैक्ट सेम है जो कबीर साहब के सब्जेक्ट का शब्द है। बट दैट्स अ हिस्टोरिकल डिस्कशन, इट हैज़ नो मीनिंग। मेन चीज़ जो सी वो सी कि रहाव दूजा की प्रथा कबीर साहब तो चलती आ रही है, और रहाव दूजा सानू निर्णय दिंदा है, जबकि रहाव पहला क्वेश्चन सी। आओ होर वेखिए ये शब्द भी जिहड़ा मैं पिछे तुहानू गल कर रहा सी कि भी इहनूं असीं विस्तार च वेखांगे। दूसरा शब्द महला पंजवां राग गौड़ी ग्वारेरी चौपदा है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन बिद कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाइए हर राम सहाय। किवें मिलेगा राम सहाय? क्यों पाइए हर राम सहाय, किन बिद। हुण इत्थे तुसीं एक गल वेखो, नन्ना है मुक्ता, ख्याल रखियो थोड़ा जिहा, वी आर गोना टॉक अबाउट दिस। किन बिद, किहड़ियां तरीकियां नाल, किहड़े तरीके नाल, किन बिद इत्थे प्लूरल है किन। कुशल होत मेरे भाई, क्यों पाइए
हर राम सहाय किवें पाइए राम सहाय नूं किहड़ा तरीका करिए किहड़ियां विਉਂਤਾਂ करिए कि सानू परमात्मा दा मिलाप हो जाए क्वेश्चन है कुशल न ग्रह मेरी सब माया सारी माया मैं अपनी समझी बैठा मैं सोचदा कि मेरे घर विच जो भी है इस नाल मारे कहंदे इस नाल कुशल नहीं होना मैं तो सोच के बैठा हर चीज मेरी है ऊंचे मंदिर सुंदर छाया मेरे घर वड्डे हैं उन्हां दी मैनू कंफर्ट बहुत है झूठे लालच जन्म गवाया महाराज कहते ये सारिया चीज़ां करके तू झूठे लालच विच डांजा गवा रहा है मनुखा हस्ती घोड़े देख विगासा बड़ा खुश होना है हस्ती घोड़े देख के लश्कर जोड़े नेब खवासा मतलब नौकर चाकर गल जेवड़ी हौमे के फासा ये सारिया चीज़ां गले दी जंजीर है हौमे दे फासे हैं फंसी है हौमे दी फांस है हौमे दी रस्सी है जिहड़ी तेरे गले विच पै रही है हौमे फांसी दे फंदा बन के राज कमावे दह दे सारी बड़ा राज कमाया बड़े चक्रवर्ती राजे बन गए माणे रंग भोग बहुत नारी हरम विच नारियां भी बहुत हैं जो नरपत सुपने भिखारी ये सारिया चीज़ां इवें हैं जिवें राजा सुपने विच भिखारी बन गया एक कुशल मोको सतगुरु बताया सतगुरु ने मैनू एक कुशल दसिया कक्के नूं औंकड़ है इको ही कुशल दसिया किहड़ा कुशल हर जो किछ करे सो हर क्या भगतां पाया हुक्म रजाई चलना हर जो किछ करे सो हर क्या भगतां पाया जन नानक हौमै मार समाया कि महाराज कहते सी इत्थे गल जेवड़ी हौमै के फासा जन नानक दास नानक हौमै मार समाया हुण इत्थे वेखो महाराज कहते इन बिद कुशल होत मेरे भाई नन्ने नूं लग गई सिहारी खाली यही एक तरीका है मैं तुहाडे नाल गल कीती सी कि किन जिन उन तिन और एक मैनू भुल रहा 5 इस तरह के शब्द हैं जिन्होंने जे नन्ने नूं सिहारी लगेगी तो वह एक वचन के लिखायक है जे नन्ना मुक्ता होएगा तो वह बहुवचन के लिखायक हैं सो इत्थे महाराज कह रहे हैं इन बिद कुशल होत मेरे भाई यो पाई है हर राम सहाय और इत्थे निर्णय देता महाराज ने कि यही एक तरीका है वो केड़ा तरीका है जो हर जो किछ करे सो हर क्या भगतां पाया हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुण इत्थे असीं वेखीए दिस इज समथिंग यूनिक तुसीं शायद ही किसी ने इस चीज़ ते ख्याल किया होए मैं जदों नंबरिंग सीक्वेंस की अपनी चैप्टर बना रहा सी काफ़ी महीने पहले उदों मेरे सामने ये चीज़ आई सी कि रहाव दूजे का तां एका लग्या होया पर इत्थे सीक्वेंस नंबर नहीं हैगा शब्द का ना रनिंग सीक्वेंस है ते ना ही सीक्वेंस टोटल है ये की हो गया बई हुण इस तो उपर जिहड़ा शब्द आंदा है उहदा असीं नंबरिंग सीक्वेंस के टाइम विचार कीती सी उहदा टोटल है 4 चौपदा 6 शब्द इस लड़ी विच 20 18 ते 32 टोटल हो गया सी 70 इस शब्द के उपर इस शब्द के पहले जो शब्द आंदा है उहदा नंबर है 70 और इस शब्द के बाद जिहड़ा शब्द आया उहदा नंबर हो गया 71 ते इहनूं मिलना चाहिए सी पर महाराज ने 71 उत्थे लाता पर जिहड़ा सीक्वेंस नंबर उस चौपदे दा है वो है 2 ਇਹਦਾ शब्द सीक्वेंस नंबर सी 1 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि रहाव दूजा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ है वो ड्यूअल परपस सर्व कर रहा है कि वो शब्द सीक्वेंस भी दस रहा सानू और रहाव दूजे का ਏਕਾ भी दस रहा पर फिर भी जे एवें हुंदा भी ते इत्थे 70 आना 71 आना चाहिए सी क्योंकि उपरला शब्द 70 है सो इस कुंडी नूं असीं सॉल्व करांगे एट द लास्ट स्लाइड मैं तुहानूं दसांगा शेयर करांगा तुहाडे नाल कि इत्थे की होया आओ अगली स्लाइड ते चलिए ये शब्द है पंचपदा इनका विचार असीं पिछली जदों विचार कीती सो उदों कर लिया सी पैरां दे नंबरां दा की मतलब है प्रथम तेरी निकी जात द्वितीया तेरी मनिए पांत तृतीया तेरा सुंदर थान बिगड़ रूप मन मह अभिमान
सोहनी स्वरूप सुजान विचखन अत गर्भ है मोह फाकी तू रहाव आ गया। इत्थे महाराज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं कि अत गर्भ है मोह फाकी तू, मोह लालच दे विच फसी हुई है, सोचदी है बहुत सियाणी है। हे जिंदू तू अपने आप को सोचती है कि सोहनी है, स्वरूप है, सुजान है, बहुत सियाणी है, बहुत चतुर है, पर है क्यों हो कि रहा अत गर्भ है। अत गर्भ विच मोह फाकी तू, मोह माया दे ममता विच फसी हुई है। अत सूची तेरी पाकसाल कर इस्नान पूजा तिलक लाल, गल गली गर्भ है मुख गोवह ज्ञान, मुख तो बहुत ज्ञान उचारदी है, बहुत ज्ञान दसदी है लोगों को। सब विद खोई लोभ सुहान कापर पहरें भोगै भोग आचार करें शोभा मह लोग, चंगा नाम रखा के जस कीरत जग ले, चोआ चंदन सुगंध विस्तार संगी खोटा क्रोध चंडाल। अवर जोन तेरी पनहारी इस धरती में तेरी सिकदारी, अगेन चंगा नाम रखा के जस कीरत जग ले, सोना रूपा तुझ पे दाम सील बिगाड़ो तेरा काम, जाको दृष्ट में हर राय सा बंदी ते ले छड़ाए, साध संग मिल हर रस पाया कहो नानक सफल ओह काया, सब रूप सुख बने सुहागन अत सुंदर विचखन तू रहाव दूजा। इत्थे महाराज की कह रहे हैं, तू जेड़ी अपने आप नू ए सारियां गल्लां करके सियाणी समझदी सी ना, वो सारे तेरे काम बिगाड़े हुए सी, वो सारे काम तेरे बेकार सी। क्यों जाको दृष्ट मैं हर राय सा बंदी ते लाई छड़ाए, ओ बंदे नू, उस हस्ती नू, उस आत्मा नू, उस जीव स्त्री नू प्रभु परमात्मा ने बंधना तो छुड़ा लेना है जदों नया हर राय। वो किवें साध संग मिल हर रस पाया कह नानक सफल ओह काया, ओही काया सफल है। सब रूप सुख बने सुहागन, तां तेरे सारे सुख बन जाएंगे, तू सुहागन बनेगी। फिर तू अत सुंदर विचखन तू, तां तू चतुर सही रूप दी जेड़ी चतुरता तेरे विच आएगी, उन्हां चीजां करके आएगी। सो इत्थे रहाव दूजा विच महाराज ने निर्णय दे दिता। इत्थे 5 पदा शब्द है और 12 नंबर का शब्द है, इनू असीं अगे चल के वेखना है। हुण देखो मारू महला पंजवां, ए भैन जी ने जिहड़ा शब्द दसिया सी, कहा सी भी इत्थे 2 दे नाल रहाव दूजा विच 2 विच 11 क्यों आया, वो मैं थोड़ी जी विचार करनी है कि इत्थे 5 और 2 सी, 5 पदे दे उत्ते सीक्वेंस नंबर 2 लग गया, क्योंकि ये सीक्वेंस विच दूसरा शब्द है। मैं इत्थे ज्यादा विचार रहाव दे नहीं करने, क्योंकि वी हैव डिस्कस दैट इन डिटेल, पर ये मैं खाली इस वास्ते इत्थे स्लाइड ते पाया शब्द कि 5 पदे दा जिहड़ा डेजिग्नेशन सी वो इत्थे आ जाता है। दूजा शब्द है इस लड़ी विच रहाव दूजे नाल 2:11 आ जाता है, क्योंकि यह शब्द नंबर दूसरा है, रहाव दूजा है। यही एक जगह ऐसी है जिथे रहाव दे नाल 2 नंबर वरत्या गया, अदरवाइज रहाव दूजा दे नाल 2 नंबर किते नहीं वरत्या गया। और रहाव तीजा करके शब्द किते नहीं आंदा, वो डेजिग्नेशन किते नहीं हैगा। रहाव दूजा दे नाल नंबर 3 किते नहीं वरत्या गया, रहाव दूजे नाल तकरीबन 1 नंबर ही वरत्या गया है, और उस तो बाद 2 नंबर खाली इत्थे आंदा। भैन जी ये तुसीं एक बारी क्वेश्चन पूछा सी, सो इत्थे क्लीयर हो जाता है कि 2 जिहड़ा हैगा वो ड्यूअल परपस, 2 परपस सर्व करता है। इत्थे 5-2 सीरीयल नंबर 2 है शब्द का, इत्थे रहाव दूजा का 2 आ गया, और 11 नंबर श्रृंखला का टोटल है, 11 नंबर सीक्वेंस टोटल है। हुण असीं देखते हैं उस नंबर मिसिंग दी, जिहड़ा नंबर मैं तुहाडे नाल गल कीता सी कि 71 मिसिंग है। मिसिंग कुछ भी नहीं हैगा, महाराज ने बड़ी गहराई नाल शब्दां दे टोटल कीते हैं। और मैं तुहानूं कहा सी कि भाई 176 अंक ते जिहड़ा शब्द है ओहदा नंबर है 4, 6, 20, 18, 32 और 70। और उस तो थलरा जिहड़ा शब्द आया सी ओहदा सी 2 और 71।
ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ 200 अंक ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 4, 105 ਔਰ 174। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਹ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 174 ਚੋਂ ਜੇ 105 ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 69, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ 70। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 105 ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਇਆ 174। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਡਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ 113, ਇੱਥੇ ਸੀ 105, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 113, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ 8। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 2, 2, 115, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ 2, 1, 116, 1, 117। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 172। 9 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ 181। 181 ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 70 ਜੋੜ ਦਈਏ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 251। ਇੱਥੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਟੋਟਲ 251। ਸੋ 251 ਔਰ 251 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਟੋਟਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹ 105 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀ ਟੋਟਲ ਸੀ, ਰਨਿੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਟੋਟਲ ਚੱਲਿਆ। 105 ਤੋਂ 8 ਮਿਲ ਕੇ 113 ਹੋ ਗਿਆ, 115, 116, 117, 121, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਦੇ 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 172 ਆ ਗਿਆ। 172 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜੇ, ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 251, ਕਿਉਂਕਿ 70 और 172 और 9 ये हो गया 251। सो कोई भी लफज मिसिंग नहीं, किसी शब्द का सीक्वेंस नंबर मिसिंग नहीं। सो कई विद्वाना ने लिखा कि एक गलती है, ये शब्द विद्वाना ने यूज किए हैं कि इत्थे ये गलती है, ये होना चाहिए सी, ये होना चाहिए सी। सो मैं तुहाडे नाल की डिस्कस कर रहा कि ये है, जे असीं गहराई विच जाके वेखांगे ते सानू ये मिल जाते हैं। That's the end of my presentation। किसी का कोई सवाल होए ते दसो, हुक्म करो, otherwise I am done।